गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो सब? एवरीवन फाइन? स्टार्ट करेंगे। सो ये स्टार्टेड हाँ टुडे। क्या हो गया? पार्टी? अच्छा अच्छा, तो फाइनली ये स्टार्टेड हाँ। चलो नाइस। अपना मनिंदर सर ना? चलो ग्रेट। कैसा लगा? अच्छा लगा? हैकिंग वैकिंग बताए सर? कुछ नहीं होता। नाउ यू विल बी एबल टू हैक एवरीवन्स नेटफ्लिक्स. You will be able to hack the Wi-Fi password. He's an ethical hacker actually, but which is unethical. चलो, so yesterday we started with ऐसे 560. आज अपन wind up करेंगे 570 along with 560. 580 अपना already हो गया. So last two standards we are on the, and after that evidence and documentation chapter will be over. उसके बाद अपन एक काम करेंगे, audit reports chapter start करेंगे, that is 700 series. And audit report के साथ साथ I will make you understand CARO 2020 also, that is company audit report order, which is the recent amendment and applicable for your examinations. ठीक है? Now 560 में, as I told you, what is the name of the 560 everyone? Subsequent events. इसमें मैंने तुम्हें कल बताया था कि we are going to divide this particular standard into three parts. What are the three parts we divided it into? We divided it into three. करा था ना divide कल? कहां पे? कहीं तो करा था यार divide. चलो anyways, what are the three parts we divided it into? What are the three major dates which are very important for us? Date of balance sheet, signing of audit report, and circulation. So if you as an auditor, you have already completed an audit and you have already signed the audit report, right or not? If before signing the audit report but after the balance sheet date, if you come across any kind of event which is impacting the level of ROMUM at which level? FS level, then in that case you have to follow as per AS4. हमने कल AS4 कर लिया था, थोड़ा बहुत आइडिया आ गया था. Adjusting event and non-adjusting event. But we are not interested in the first part because first part तो तुम्हें accounts में भी है. We are interested in the second part and third part. Second part क्या था? When you come across an event when after signing the audit report but before what? Circulation. तुमने after signing कर दिया but before what? Circulation. And what is the third part everyone? You came across an event which happened. It already happened, but when you came across it after what? Circulate. I think this part also is over. Yesterday we have done. So in this case अपन क्या करते हैं? We directly rush to the management and TCWG. Full form? Those charges. और हम वहां पे जाके क्या करते हैं? DDI. DDI का मतलब पहले हम डिस्कस करेंगे कि सर ऐसा ऐसा हो गया. This is the event I came to know after the signing of the audit report. What to do with that? Then I will determine कि whether the impact is so huge that the financial statements are required to be amended or not, or revised or not. Then I will inquire from the management कि are you ready to amend it or not. तो management मेरे को दो ही reply देगा, yes they are ready or no they are not ready. अगर management ने बोला कि yes they are ready to amend the financial statement, तो अपन क्या करेंगे सर? तो अपन क्या करेंगे? अपन करेंगे फैप. व्हाट इज फैप? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर. और फैप क्योंकि डू आई हैव टू डू द फैप ऑन टोटल ऑडिट और ओनली ऑन दैट इवेंट, राइट और नॉट? एंड आई विल ट्राई टू इशू अ व्हिच रिपोर्ट? न्यू ऑडिट रिपोर्ट. बट हमने कल क्या पढ़ा था कि अगर कंपनी तुम्हें न्यू ऑडिट रिपोर्ट लेने के लिए मना करे, इफ द कंपनी सेज नो टू यू कि हाँ भैया न्यू ऑडिट रिपोर्ट मत दो, ओल्ड ऑडिट रिपोर्ट में कुछ कर दो, देन ऑल्सो वी हैव एन ऑप्शन. वी कैन गो फॉर व्हिच पैरा? ड्यूअल डेटिंग पैरा का मतलब क्या होता है सर? कि वी आर गोइंग टू डेट अनदर ओपिनियन पैरा इन अवर एग्जिस्टिंग ऑडिट रिपोर्ट एंड माय रीसेंट ओपिनियन पैरा विल ऑटोमेटिकली इनवैलिडेट माय ओल्डर पैरा. तो मतलब फॉर यू द न्यू पैरा इज गोइंग टू बी द ओपिनियन एक्चुअली, एंड आई विल मेंशन दैट आल्सो कि डोंट रिलाई अपॉन द पैराग्राफ व्हिच इज रिटन अबव. उसे हम लोग कौन सा पैरा बोलते हैं? ड्यूअल डेटिंग. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, ये बहुत ही ओल्ड कॉन्सेप्ट है क्योंकि nowadays we do not send even the audit report via post. We send the audit report via what? Email. तो email में तो कोई printing stationery का cost ही नहीं है. तो we can simply, we have not yet circulated, so we can change the report and upload the new audit report. Are you getting the point? So it is a very old method. Which method is very old method? Dual dating method.
ये तब की बात है जब अपन फिजिकल कॉपीज भेजते थे, व्हेन वी यूज्ड टू सेंड द फिजिकल कॉपी टू द शेयर होल्डर। और आजकल तो लॉ में तुमने पढ़ा हुआ है पोस्टल बैलेट सिस्टम। व्हाट इज अ बैलेट सिस्टम? पोस्टल बैलेट। और आजकल कौन सी वोटिंग होती है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। तो एवरीथिंग इज नाउ ऑनलाइन। एंड अगर आप लिस्टेड कंपनी हो और कंपनी हो विद मोर देन 200 शेयर होल्डर्स, तो देन तो यू हैव टू डू द पोस्टल बैलेट सिस्टम ओनली, देयर इज नो अदर ऑप्शन। So this used to be a olden day method. Am I correct? But anyways, it is there a part of your topic, so you have to do it. But what will happen if the management refuses to amend the financial statement? उस केस में क्या करेंगे? अगर मैनेजमेंट ने मेरे को डायरेक्टली मना कर दिया, रोहित हम लोग अमेंड नहीं करेंगे, तो जो करना है कर ले, तो मैं क्या करूं? मैं फर्स्ट तो ट्राई करूंगा, आई वुड लाइक टू मॉडिफाई माई ओपिनियन। मॉडिफाई मतलब मेरे पास तीन ऑप्शन होंगे, एडवर्स, क्वालिफाइड, डिस्क्लेम, बट दैट विल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। अगर एविडेंस मिल गया एंड आई डिटेक्टेड अ फ्रॉड एंड एरर, हाई मटेरियल मिसस्टेटमेंट विच इज एम एंड पी, तो एडवर्स, एम बट नॉट पी, क्वालिफाइड। बट इफ आई डिड नॉट गेट द एविडेंस एट ऑल एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एम बट नॉट पी, क्वालिफाइड, but there is a possibility of M as well as what? P, then there will be a disclaim. But that I already told you, better to use a word called what? Modify. But what if the management is not allowing to modify? अब क्या करेंगे? तो एक काम करेंगे, we will tell them to circulate it, whatever you want to do it, but I will take my appropriate action. What is my appropriate action? I will give the public notice of not to rely upon my audit report. मैं पब्लिक न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट में नोटिस दे दूंगा कि भैया मेरी ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर रिलाई मत करना, दिस ओपिनियन इज नाइदर ट्रू नॉर फेयर। क्लियर है? अभी तुम्हें स्टैंडर्ड समझ में आ रहे हैं पूरे, ईच एंड एवरी मीनिंग ऑफ द स्टैंडर्ड, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द फ्लो? तो इफ दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस दे विल आस्क यू इन द एग्जामिनेशन, विल यू बी एबल टू मैनेज? ये दो ड्राफ्ट कैसे करेंगे कि एबीसी लिमिटेड हैपेंड दिस एंड दैट, after signing the audit report auditor came to know, so will you be able to strike off कि yes this question is particularly relating to 560 में either it is case 1, case 2 और case 3। तो अपना case 1 case 2 is over, तो let's wind up the 560 by understanding the case 3। case 3 क्या था सर? read the case 3। auditor comes to know about an event when? auditor comes to know about an event after signing and after the financial statement and audit report are issued and circulate। सबसे डैमेजिंग सिचुएशन ये है, द रीजन बीइंग वेरी सिंपल, ईमेल्स आर आल्सो बीइंग सेंट और पोस्टिंग हैज आल्सो बीन डन। तो अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑलरेडी ऑडिटेड हो चुकी है, ऑडिट रिपोर्ट वाज ऑलरेडी साइंड, इट इज सर्कुलेटेड एज वेल, एंड नाउ ऑडिटर इज कमिंग अक्रॉस एन इवेंट विच इज इंपैक्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट अ हाई लेवल। तो अब इस सिचुएशन में क्या करेंगे? इन दिस सिचुएशन, रीड दिस पैराग्राफ, यू डू नॉट हैव टू स्टार्ट डायरेक्टली विद द डीडीआई। In this paragraph also DDI will come, but before DDI we have to write one sentence. What is that sentence? Generally, no AP is required. What do you mean by no AP is required? No audit procedure. क्योंकि हम लोग ये situation को worst situation consider करते हैं. We consider it as a which situation? Worst situation means what? In hand or nothing in hand. So any audit procedure can be done or cannot be done. So in that case, what we will do, because it is already being issued, or there might be a case if it is a which event? Immaterial event. अगर मान लो वो event immaterial है, what do you mean by immaterial? Too significant or least significant? Then there is no requirement of audit procedure, na? You can ignore it. And second reason why you don't have to follow the audit procedure, because the financial statements and audit reports are already issued. But next topic है, read this point. But if the event is what? Material. What do you mean by material? Ignorable or non-ignorable? मैं ignore नहीं कर सकता. Even though it is happening after the circulation, I can ignore or cannot ignore? Cannot ignore. तो अब मैं क्या करूं? It is highly material matter. तो अपन DDI करेंगे. What is DDI? Discuss, determine. अब समझ में आया? What is the difference between the case 2 and case 3 में difference बताओ? How you will start the answer with the case 2? Directly with the DDI. कंपनी पे डिस्कस किया, determine किया, inquire किया. But here what you will write before DDI? You will write generally AP required or not required? If it is a which event? Immaterial event. Are you getting it? But if the event is too material, then in that case you have to do DDI. What is DDI? Discuss, determine, inquire. अब मैंने डिस्कस भी किया, डिटरमाइन भी किया, इंक्वायर भी किया।
अब मैनेजमेंट मेरे को रिप्लाई करेगी. अब मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी मच इन डेंजर. वाई? बिकॉज दे हैव ऑलरेडी सर्कुलेटेड द रॉन्ग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड दे हैव ऑलरेडी सर्कुलेटेड द रॉन्ग ऑडिट रिपोर्ट. अब ये इवेंट इज सो मटेरियल दैट इट कैन बी इग्नोर्ड और कैन नॉट बी इग्नोर्ड. अब यहां पे क्या होगा, अब इसको ध्यान से सुनना. लिटिल बिट वी आर गोइंग टू गो ऑफ द ट्रैक. आई विल टेल यू वन कॉन्सेप्ट व्हिच यू हैव टू लर्न. सिंपल. If the management is ready to what? Amend the financial statement. Same left side वाला case. If the management is ready to amend the financial statement, मैं फिर से क्या करूंगा? FAB. What is FAB? And check on management that how do they inform to every receiver of financial statement and annual report. अब मेरे को ये टेस्टिंग करना है. मैं तो FAB कर लूंगा. देखो, सर्कुलेशन इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी और मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी. मेन टेंशन किनके ऊपर है? मैनेजमेंट के ऊपर. आई विल डू माई फैब, आई विल गो असाइड, बट अल्टीमेटली द ट्रू बर्डन इज ऑन हु शोल्डर? मैनेजमेंट. नाउ आई विल वॉच द मैनेजमेंट हाउ डू दे कन्विंस द शेयर होल्डर्स नॉट टू रीड द ओल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ओल्ड ऑडिट रिपोर्ट. आर यू गेटिंग द पॉइंट? उसका एक ही ऑप्शन है कि मैनेजमेंट विल सेंड द मेल अगेन and to all the shareholder it will make a humble request not to rely upon the mail which is already sent to you. Are you getting the point? तो management एक और मेल भेजेगा कि not to rely upon the mail which is already been sent to you. अब चलो, management took the needful action, now it is fine. Again I have two options. What are the two options? I can either issue a, और मैं क्या कर सकता हूं? Dual dating. ये ऑप्शन तुम्हें मालूम है. Either you can issue the new report or you can do the what? Dual dating. But what is this thing which might be looking alien to you? What is this? Read the word. What is the word written? EMP, OMP. Sir, EMP, OMP paragraph actual में I should tell you at the 706. Which standard everyone? 705 talks about modification जिसमें अपन qualification adverse disclaimer पढ़ेंगे. 706 में अपन पढ़ेंगे कि EMP, OMP paragraph क्या होता है. अब सुनना ध्यान से. EMP and OMP paragraphs are those paragraphs which are not at all affecting auditor's opinion. Repeat, which are affecting whose opinion? Auditor. But they are so important that I would like to bring the attention of users of financial statement on the same. मतलब मैंने नेगेटिव नहीं बोल रहा. आई एम नॉट सेइंग कि EMP, OMP paragraph is a negative paragraph. But they are important paragraphs. Are you understanding my language? I'm not saying they are. अगर ये नेगेटिव होते ना तो ये मेरी ओपिनियन को अफेक्ट करते. It should have affected my what? Opinion. So they are not negative. They are genuine paragraphs, but they are so significant, so important that कि this fact has to be shown to whom? Users of financial statement. अब सुनना ध्यान से जो मैं बोलूंगा. You think that कि management might have sent a mail कि do not rely upon the mail which is earlier sent to you. Do you believe if the management says that? Do you believe if the management says that कि we have already sent a mail कि do not believe on this mail? Is it a light matter or it's a very significant matter? Are you going to believe the management? Or you have to take your side action also? I have to take my action. देखो सर, management intimated, management not intimated, that is not my problem. That is whose problem? Management. मेरा प्रॉब्लम क्या है कि whether I am able to afford my duties properly or not. मेरे को क्या करना है, मैं जब न्यू ऑडिट रिपोर्ट दूंगा उस न्यू ऑडिट रिपोर्ट में एक पैराग्राफ ऐड कर दूंगा, EMP एंड OMP पैराग्राफ. व्हाट इज EMP का फुल फॉर्म पढ़ो क्या है? एम्फेसिस ऑफ मैटर्स पैरा. एंड OMP का फुल फॉर्म क्या है? अदर मैटर्स पैरा. तो मैं ये दो पैराग्राफ्स में से एक पैराग्राफ ऐड कर दूंगा और उसमें लिखूंगा कि दिस audit report is the new audit report. I would like to tell all the users of financial statement कि do not rely upon the audit report which you have already accessed. That audit report is neither true nor fair. So I would like to draw your attention towards this event which I came across when after circulation, due to which the impact was so high कि I had to issue a new audit report. So old report is null and void. न्यू रिपोर्ट इज वैलिड. वो मैं कहां पे लिखूंगा? आई विल राइट दैट इन विच पैराग्राफ? अब यू माइट बी थिंकिंग सर ये तो डुप्लीकेशन हो गया, मैनेजमेंट ने भी ऑलरेडी मेल भेज दिया
और आप भी अपनी रिपोर्ट, भाई वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेट द मैनेजमेंट डू, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी आई विल डू। अब तो मुझे बताओ स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑडिटर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसकी है? डू आई इंटरफेयर? नो। डू दे हैव अ राइट टू इंटरफेयर इन माई स्टैंडर्ड्स? तो भैया यू डू योर ओन ड्यूटी, आई विल डू माई ओन ड्यूटी बाय इंक्लूडिंग अ विच पैराग्राफ। अब सोचो ईएमपी ओएमपी हमने सेकंड सिचुएशन में क्यों नहीं ऐड किया? Was it circulated or not yet circulated? Not yet circulated. डिफरेंस समझ में आया दोनों में? तो हमने यहां पे एग्जैक्टली दो डिफरेंसेस को कैच किया बिटवीन द केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। केस नंबर 2 में मैंने स्टार्टिंग कर दी थी डीडीआई से। व्हाट इज डीडीआई? डिस्कस, डिटरमाइन, इंक्वायर। केस नंबर 3 में डिड आई स्टार्ट विद डीडीआई और फर्स्ट आई चेक्ड वेदर इट इज मटेरियल और इमटेरियल? फर्स्ट आई चेक्ड वेदर इट इज मटेरियल और इमटेरियल। अगर इमटेरियल है तो मैंने प्रोसीजर करा ही नहीं, और अगर मटेरियल है तो मैंने क्या किया? प्रोसीजर करे और डीडीआई करा। इज इट करेक्ट? एंड सेकंड केस में व्हाट इज द सेकंड डिफरेंस यू फाउंड बिटवीन द केस 2 एंड केस 3? व्हाट इज द सेकंड डिफरेंस यू फाउंड इन द केस 2 एंड केस 3? डोंट डिस्टर्ब अम्मा, डोंट डेट टू डिस्टर्ब मी, ठीक है? व्हाट हैपेंड इन द सेकंड केस? सेकंड केस में हमने क्या किया था? फैप, न्यू ऑडिट रिपोर्ट और ड्यूल डेटिंग पैरा। वी हैव डन दैट। व्हाट एक्स्ट्रा वी आर डूइंग हियर? फैप, न्यू ऑडिट रिपोर्ट, ड्यूल डेटिंग पैरा, एंड व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? ईएमपीएन। देखो मैं एक बात बताता हूं तुम्हें, जब मैं कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलता हूं ना तो डोंट डेयर टू डिस्टर्ब मी। इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर यू विल बी आउट ऑफ द क्लास। मेरे को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता वो लड़की डिस्टर्ब कर रही है लड़का डिस्टर्ब कर रहा है। तुम्हें उसके साथ लुल्ले पोचे करने, बाहर जाके करो। समझ में आ रहा है? देखो, ट्राई टू डाइजेस्ट द रिलेशनशिप व्हेन द फैकल्टी इज बीइंग लीनिएंट विद यू। द डे शुड नॉट कम दैट द नेक्स्ट डे योर हैंड शुड बी ऑन द शोल्डर ऑफ द फैकल्टी सेइंग दैट हाउ आर यू एंड ऑल दोस थिंग्स। देयर शुड बी एट लीस्ट दिस मच ऑफ डेकोरम वी हैव टू मेंटेन कि व्हेन समवन इज टीचिंग यू समथिंग यू शुड गिव द ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन। ठीक है ना? जब अपने को मजाक करना होता है, जब अपने को फन करना होता है, अपन फुल फन करते हैं। लेकिन जब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है एंड बीइंग सिटिंग इन द फ्रंट, you can't afford to disturb me. Want to, you dare to, and I'll let you know what I can do. समझ में आ रहा है? हाँ के ना? हाँ के ना? अभी भी हंस रही हो? सॉरी बोलने के बाद हंस रही हो? बाहर चले जाओ, मूव। थैंक यू। समझ में आ रहा है? सो अब मेरे को ये बताओ, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 में डिफरेंस बताओ। टेल मी, दोनों में दो डिफरेंस बताओ मेरे को। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन सिचुएशन 2 एंड सिचुएशन 3? सिचुएशन 2 में क्या हुआ था? हमने डायरेक्टली डीडीआई करा था। सिचुएशन 3 में क्या हुआ? पहले मटेरियलिटी चेक करा। अगर इमटेरियल है तो ऑडिट प्रोसीजर नहीं करेंगे, चैप्टर क्लोज। लेकिन अगर मटेरियल है तो डीडीआई करेंगे। और सेकंड डिफरेंस क्या है? हमने वहां पे भी फैप किया, यहां पे भी फैप किया, वहां पे भी न्यू ऑडिट रिपोर्ट, यहां पे भी न्यू ऑडिट रिपोर्ट, वहां पे भी ड्यूल डेटिंग पैरा, यहां पे। बट व्हाट इज एक्स्ट्रा वी डिड इट हियर? ईएमपी ओएमपी बेसिकली पैरा है क्या? अब तुम्हें इसका मीनिंग समझ में आया ईएमपी ओएमपी का, कि मैं ये पैरा सिर्फ इसलिए इंक्लूड कर रहा हूं ताकि मैं यूजर्स को ड्रॉ कर पाऊं अटेंशन कि भैया ओल्ड ऑडिट रिपोर्ट विच इज ऑलरेडी सर्कुलेटेड टू यू इज नल एंड वॉइड। प्लीज रिस्पेक्ट एंड प्लीज रीड दिस ऑडिट रिपोर्ट। डिड यू गेट द पॉइंट और नॉट? सर वो तो मैनेजमेंट ने ऑलरेडी फैप करते हुए यू ऑलरेडी चेक की मैनेजमेंट सेंटर मेल और नॉट। दैट वाज हुज रिस्पांसिबिलिटी एंड दिस इज माय रिस्पांसिबिलिटी। ऑल दिस विल हैपन व्हेन द मैनेजमेंट इज रेडी टू अमेंड। ये तो हमने पॉजिटिव वे में लिया अभी तक। एम आई करेक्ट? प्रॉब्लम कब आएगी? व्हेन द मैनेजमेंट रेडी और रिफ्यूजेस टू अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तुम्हारे पास मे मॉडिफाई का ऑप्शन है, यहां पे मे मॉडिफाई का ऑप्शन है और देयर इज नो ऑप्शन। लॉजिक बताओ, तुम्हारे पास मे मॉडिफाई का ऑप्शन क्यों नहीं है? ऑलरेडी सर्कुलेटेड, मैनेजमेंट करने दे रही है, नहीं करने दे रही, नहीं करने दे रही, तो मेरे पास मे मॉडिफाई का ऑप्शन है ही नहीं है। बट मैं एटलीस्ट मैनेजमेंट को एक एडवाइस देके आऊंगा। व्हाट इज द एडवाइस? टेल मैनेजमेंट नॉट टू टेक एनी अनड्यू एडवांटेज ऑफ इट and later on take a which action? Approve.
और जब मैं एप्रोप्रिएट एक्शन की बात करता हूं, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग कम्स टू योर माइंड? पब्लिक नोटिस, न्यूज़पेपर, एडवर्टाइजमेंट, नॉट टू रिलाई अपॉन माय ऑडिटर। ये सबसे डैमेजिंग एक्शन है विच यू कैन टेक अगेंस्ट द कंपनी। समझ में आ रहा है सर? ठीक है, देखो मेरी बात एक ध्यान से सुनो। जब अपन ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, मैंने तुम्हें डे 1 से बोला था, दिस सब्जेक्ट डिजर्व्स अ नेसेसरी अटेंशन, अ नेसेसरी कंसंट्रेशन, डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो डोंट डिस्टर्ब मी, लेकिन मैं जब नहीं पढ़ा रहा तो डू व्हाटएवर यू वांट टू डू इन द क्लास, आई विल आल्सो हैव फन विद यू। तो ये क्या होती है, हर एक चीज करने का एक टाइम होता है, देयर इज अ टाइमिंग ऑफ डूइंग एनीथिंग। तुम आप फ्रंट बेंच पे बैठ के मेरे को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अभी तक तुमने मेरे को नहीं पहचाना अच्छे से, मतलब मैं ऐसी बेइज्जती करता हूं ना सामने से, द पर्सन विल स्टार्ट क्राइंग ऑन द स्पॉट। आई विल मेक श्योर दैट कि टीयर्स शुड कम आउट ऑफ योर आईज। अगर आपने मेरे को डिस्टर्ब किया तो, नहीं डिस्टर्ब करोगे स्मूथ वे में गाड़ी चलेगी। तो क्या होता है, हर एक फैकल्टी का अपना अपना एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। तो सैचुरेशन पॉइंट को टच नहीं करना, क्रॉस नहीं करना, यू हैव टू बी बिलो दैट। आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हिच आई कैन अफोर्ड टू बी इन माय क्लास? ठीक है, तुम डेयर करोगे, मेरा ओल्ड स्टूडेंट है और न्यू स्टूडेंट हो, घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, अच्छे हो बुरे हो घंटा फर्क नहीं पड़ता, लड़का हो लड़की हो घंटा नहीं फर्क पड़ता, तुम डायरेक्टली क्लास के बाहर जाओगे। और अगर मेरा मन किया तो क्लास के अंदर ही रहोगे, बट थ्रू आउट द क्लास यू विल बी टॉन्टेड। समझ में आ रहा? ठीक है, तो अपना टॉपिक हो गया सर। तो व्हाट आर द 3 केसेस वी आर डन विद? पहला केस क्या किया हमने? आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। सेकेंड केस बिफोर सर्कुलर। थर्ड केस, तीनों केसेस में ऑडिटर को कैसे मैनेज करना है, डिड यू ऑल नो नाउ? तो यही तीनों में से क्वेश्चन। अब फोर्थ कोई केस ही नहीं है, इट मींस आईसीए कैन नॉट ड्राफ्ट एनीथिंग लाइक अ फोर्थ केस कि आफ्टर सर्कुलेशन हैपेंड, ऐसा पूछ सकता है क्या? तो 3 ही सिचुएशन हो सकती हैं। तो पहले केस में हमने AS4 का हेल्प ले लिया, दूसरे केस में हमने DDI कर दिया और 2 केसेस कर लिया, और तीसरे केस में थोड़े 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा कर दिए। क्या 2 पॉइंट एक्स्ट्रा? एक मटेरियल इमटेरियलिटी चेक करी शुरू DDI करने से पहले, एंड सेकंड पॉइंट पे क्या किया हमने? EMPO। सर अभी भी मैं बता रहा हूं तुम्हें, मैंने ना तो 705 पढ़ाया ना 706 पढ़ाया, उसको डेडिकेटली पढ़ेंगे। दिस लिटिल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन आई एम गिविंग यू व्हाई अबाउट दिस 700 सीरीज का स्टैंडर्ड, क्योंकि एवरी स्टैंडर्ड में रिपोर्टिंग पॉइंट इज देयर। तो रिपोर्टिंग में 700 सीरीज विल नॉट कम, इट विल नॉट हैपन। तो इट विल कम वेदर यू वांट और नॉट, और आई हैव टू टेल यू अ लिटिल बिट ऑफ दैट, बट इसका एग्जॉस्टिव वे में वी विल डू द वेरी नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज गोइंग टू बी आवर ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर। क्लियर एवरीवन? तो विद दैट वी आर डन विद अवर विद स्टैंडर्ड एवरीवन। लेकिन यहां पे एक और क्वेश्चन है, आरटीपी का क्वेश्चन है। व्हाट इज द आरटीपी का क्वेश्चन? ये पढ़ो, रीड द हेडिंग जस्ट, ऑडिट प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑडिट। हमें सब पता है कि सब्सिक्वेंट इवेंट इफ कम इन फ्रंट ऑफ मी, व्हाट आई हैव टू डू, दैट आई नो, but how I will be able to identify that whether this event is subsequent or not? मेरे को पता कैसे चलेगा? Read the point number 1. Identify the management's procedure of detecting the which event. कभी भी याद रख लो, you should never be so much skeptical in the beginning only. What do you mean by skeptical? Questioning. मैंने क्या बोला था? Auditing is examination, not an investigation. Give management a one chance to make you understand कि how do they suspect an event as a which event? Subsequent. वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? पहले उनका मेथड चेक कर लो। इसका मतलब पहले मैं TOC कर लूंगा। What is TOC? Let me test their controls कि how do they identify that when an event is a subsequent, when an event is not a subsequent. अगर मेरे को उनका मेथड समझ में आया तो I don't have to do the hard work, I can rely upon them. अगर मेरे को उनका मेथड समझ में नहीं आया, then I have the other sources. तो what is the point number 1? Read again. Identify management's procedure for detecting the which event? Subsequent. Clear? What is the point number 2? Evaluate the following. If I do not like their method, so I'll move to my method number 2. What is the method number 2? Evaluate the following situation. What are the following situations? Any developments in what? Contingencies. What do you mean by contingencies? Which are a part of balance sheet or which are the off the balance sheet item? ये बैलेंस शीट के अंदर होता है, बाहर होती है? तो मैं मैनेजमेंट के लीगल एक्सपर्ट पैनल से पूछूंगा कि भैया कोई ऐसा डेवलपमेंट आया क्या? इज देयर एनी केस व्हिच वाज पेंडिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट
but we won it, which was pending on the balance sheet date. We won it or we lost it. So any developments in what? Contingency. Which has happened when? Before balance sheet date or after balance sheet? Then only we'll call it a which event? Subsequent. फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 पूछा, any contracts or any new commitments you have entered which are affecting our which year? Current financial year. So what are the two questions I asked? Any developments in what? Contingencies. What is the second question I asked? Any new contract and any new. फिर मैंने third question पूछा, is there any purchase or sale of what? Asset which took place after the which date? Balance sheet date. फिर मैंने fourth question पूछा, is there any loss or damage? And मैंने fifth question पूछा, is there any major फाइनेंशियल शॉक्स? वो उसका मतलब क्या होता है मेजर फाइनेंशियल शॉक्स? मान लो तुम्हारे पास लिकर शॉप्स है 300-400 शॉप्स है हैदराबाद में, सडनली केसीआर ने अनाउंस कर दिया कि लिकर कंजम्पशन एंड सप्लाई इज व्हाट? इलीगल. तो नेक्स्ट डे यू आर अ विजय माल्या और अ बेगर. तो फुल स्टॉप लग गया तुम्हारे बिजनेस के ऊपर. तो वो तुम्हारे लिए कौन सा शॉक है? पता नहीं सुबह उठोगे या नहीं. ये क्या होता है? हार्ट अटैक. भाई 300 शॉप है, एक शॉप कम से कम नहीं तो 10 से 20 करोड़ की होती है. वाइन एंड बियर शॉप. मालूम है कितना स्टॉक होता है? कितना होता है बताना? बहुत ज्यादा स्टॉक होता है, 20-30 करोड़. मतलब 300-400 स्टॉक वो है तो तुम्हारा कम से कम नहीं तो 1200-1300 करोड़ का झटका लग गया तुम्हें. तो वो शॉक नॉर्मल शॉक नहीं होता, उसे हम कौन सा बोलते हैं? फाइनेंशियल शॉक. तो टेल मी द 5 क्वेश्चंस व्हिच आई आस्क्ड टू द मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई वेदर एनी सब्सिक्वेंट इवेंट हैज हैपेंड. पॉइंट नंबर 1, any developments in contingencies, any new contracts or commitment, any purchase or sale, any loss or damage. पूरा क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड समझ में आ रहा कि इफ दिस क्वेश्चन विल कम टू यू. अच्छा ये क्वेश्चन को कैसे पूछा जाएगा? हाउ दे विल आस्क यू दिस क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन. ब्रीफली एक्सप्लेन द सोर्सेस फ्रॉम वेयर द ऑडिटर विल आइडेंटिफाई वेदर द सब्सिक्वेंट इवेंट्स आर देयर और नॉट. लेकिन अगर उन्होंने पूछा ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसीजर्स विच द ऑडिटर विल अप्लाई इफ द सब्सिक्वेंट इवेंट इज फाउंड, तब तुम्हें 3 सिचुएशन करने पड़ेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. तो अगर ऑडिट प्रोसीजर की बात आती है तो मेन स्टैंडर्ड, अगर सोर्सेज की बात आती है तो दिस क्वेश्चन. तो सोर्सेज में पहला सोर्स क्या था? आई विल आइडेंटिफाई मैनेजमेंट प्रोसीजर फॉर डिटेक्टिंग द विच इवेंट? सब्सिक्वेंट. और मेरे 5 मेथड्स, एनी डेवलपमेंट्स, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कमिटमेंट, परचेज, सेल, लॉस और डैमेज एंड मेजर फाइनेंशियल शॉक. उन्होंने बोल रहे नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आई ऑलवेज हैव प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, लास्ट में जाके क्या लेंगे? एमआरएफ. तो मेरा प्लान सी क्या है बताओ? व्हाट इज दिस? कौन सी मीटिंग्स? शेयर होल्डर्स मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, टीसीडब्ल्यूजी मीटिंग. कुछ तो इंपॉर्टेंट डिस्कस हुआ होगा ये मीटिंग्स में. और वेन एवर एनीथिंग इंपॉर्टेंट इज डिस्कस इन द मीटिंग, हम उसका रिकॉर्ड किस में करते हैं सर? मिनट्स में. मैंने बोला मेरे को सारे मिनट्स लाके दो, so I will verify, I will identify any kind of such discussion has taken place which is impacting the company after the balance sheet. Or if that is also not available, the last option क्या है भैया? Obtain and scrutinize latest subsequent interim financial statement. देखो इसमें बहुत सारे वर्ड है जो तुम्हें यूज करने हैं. Obtain and scrutinize. Scrutinize का मतलब क्या होता है? Critically analyze. What is this? Latest. What is this? And what is this? Latest word भी समझ में आ गया कि recent वाली होनी चाहिए. What is this? After the balance sheet. But ये interim financial statement क्या होती है? अब तुम मुझे बताओ, ऑडिट प्रीवियस ईयर में होता है या ऑडिट असेसमेंट ईयर में होता है? अभी राइट नाउ मैं कौन से फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट कर रहा हूं इन माय ऑफिस? 21-22. 21-22 का कौन सा मंथ चल रहा है अभी? जून. आर यू गेटिंग द पॉइंट? अगर मान लो मैं जुलाई मंथ में हूं अभी, तो अब मेरे को ये बताओ जून मंथ एंड हो गया. इफ सपोज टुडे इज जुलाई 4th, तो जून मंथ इज ऑलरेडी एंडेड. तो जून मंथ मतलब फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इज ओवर. क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपन क्या बोलते हैं सर? इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. क्वार्टर 1, क्वार्टर 2. क्वार्टर 2 कब खत्म होगा? सितंबर में. फिर क्वार्टर 3 दिसंबर में. फिर अपन सेमी एनुअल को भी इंटरिम बोलते हैं. मतलब पहला सेमी एनुअल कब खत्म हो जाएगा? 30th सितंबर. तो उसे हम लोग बोलते हैं इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मेरे, अच्छा इससे मेरे को क्या पता चलेगा? आई विल टेल हिम सर 30th जून की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना. मैनेजमेंट ने बोला सर तुम्हारी तो कट ऑफ डेट 31st मार्च 2022 है,
कि व्हाई डू यू वांट आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैंने कहा आई एम लुकिंग फॉर विच इवेंट्स सब्सिक्वेंट, वो तो बैलेंस शीट के बाद ही होंगे ना। तो एक काम करो, मेरे को अप्रैल 1 से लेके 30 जून 2022 की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो दे दो। इसका मतलब ये नहीं है कि यू ऑलवेज नीड अ क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट। व्हाट इज द डेट टुडे? टुडे एक्चुअली प्रेजेंटली तो मैं 2 जून की फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी ले सकता हूं, क्योंकि दे आर प्रिपेयरिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैनुअली और ऑनलाइन। ऑनलाइन तो मैं बोलूंगा 2 जून की बैलेंस शीट, 2 जून का पीएनएल और 2 जून तक का जितना भी कैश फ्लो स्टेटमेंट सब लेके आओ। तो whenever you get the financial statement in between the financial year at any point of time, they are known as what? Entry. मेरे को subsequent event के बारे में पता चल जाएगा। So tell me what are the 4 sources I have? पहले मैनेजमेंट का प्रोसीजर करा, फिर मैंने मैनेजमेंट को क्वेश्चन आंसरिंग करा। What are the 5 questions I asked? Any recent developments, new contract commitment, purchase, sale, loss, damages, major financial shocks. फिर मैंने क्या बोला? मिनट्स दे दो, कौन कौन से मीटिंग है, शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, टीसी। फिर मैंने क्या बोला? ऑब्टेन एंड स्क्रूटनाइज द लेटेस्ट सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो दिस इज द अनदर क्वेश्चन व्हिच दे मे आस्क यू इन एग्जामिनेशन। एंड वन मोर थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू, अभी यहां पे हमने क्या दिया था? पब्लिक नोटिस। थर्ड केस में भी हमने क्या किया था? पब्लिक। जब भी आप पब्लिक नोटिस दे रहे हो ना, तो रिमेंबर करो यू आर एन एक्सपर्ट इन फाइनेंशियल मार्केट्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। पब्लिक नोटिस का मतलब होता है लीगल नोटिस। इट्स अ विच नोटिस? तो उस टाइम पे डोंट यू थिंक दैट यू शुड टेक एन एडवाइस ऑफ एन एक्सपर्ट? तो अपने चार्टर्ड, इवन दो यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू नो एवरी लीगैलिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट, बट हु आर द एक्सपर्ट्स इन द लीगल मैटर्स? एडवोकेट। तो टेक देयर एडवाइस। तो ये लास्ट में जब अपन गिव अ पब्लिक नोटिस फॉर नॉट टू रिलाई अपन ऑडिट रिपोर्ट लिखते ना, उसके साथ ऐड करके क्या लिख देना? प्लस टेक अ विच एडवाइस? लीगल एडवाइस। इट्स ऑलवेज बेटर टू हायर एन एक्सपर्ट व्हेन यू आर टेकिंग। क्योंकि सोचो, तुम रिलायंस के मुकेश अंबानी के अगेंस्ट जा रहे हो, ही टोल्ड यू कि मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड नहीं करना, तुम बोल रहे हो नहीं 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 मैं तो अमेंड करूंगा। अब यू डोंट नो वेदर यू विल रीच योर होम और नॉट, क्योंकि वो इतना बड़ा इंसान है कि पता भी नहीं चलेगा कि ऑडिटर घर पे पहुंचा है नहीं। बाय मिस्टेक अगर तुम पहुंच भी गए तो सबसे पहले जाके एडवोकेट को हायर कर लेना। भाई मेरा मर्डर होने वाला है, तो मेरे को एडवाइस दो मैं क्या करूं। अगर तो देखो लीगल एक्सपर्ट क्या बोलेगा, ऑब्वियसली ही वुड नॉट लाइक हिज क्लाइंट टू डाई। तो या तो तुम्हें वो एडवाइस देगा भाई मैं तेरे साथ खड़ा हूं, फटे चक दे, मतलब फाइल द केस और गिव द पब्लिक नोटिस, और ही विल कीप योर माउथ, चुपचाप घर पे बैठ जा। तो समझ में आना? तो इट्स बेटर टू टेक अ विच एडवाइस। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो इसका मतलब ये नहीं है कि यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड, यू आर नॉट द बॉस ऑफ द एवरीथिंग। बॉस वही है, मुकेश अंबानी ही बॉस है। समझ में आ रहा है? तो जब तुम इतना फाइट ले रहे हो, व्हेन यू आर कंप्लीटली गोइंग अगेंस्ट द मैनेजमेंट, इट्स बेटर टू ऑलवेज टेक अ विच एडवाइस। ये मेरी एडवाइस है, ले लेना, ठीक है। तो विद दैट वी आर डन विद एसए। अब मेरे को सारे स्टैंडर्ड की लिस्ट बना दो विद नेम, क्योंकि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि लास्ट डे को सारे 26 स्टैंडर्ड विद स्टैंडर्ड नंबर्स एंड स्टैंडर्ड नेम शुड बी इनसाइड यू विदाउट लुकिंग। 200 क्या था? Overall objectives and conducting the audit as per standards on auditing. 210 क्या था? Agreeing to the initial audit engagement terms. 230 क्या था? Audit documentation. 300 क्या था? Planning and performing an audit of financial statement. 320 क्या था? Audit materiality. फिर हमने 500 किया था। 500 क्या था? Audit evidence. फिर हमने किया था 580 WRL. What is WRL? फिर हमने किया था 505 Audit Evidence External Confirmation. ठीक है ना? फिर हमने किया था 510 क्या था? Initial Audit Engagement Opening Balance. Which balance? फिर हमने किया था 501 ऑडिट एविडेंस स्पेशल कंसीडरेशन। स्पेशल कंसीडरेशन में 3 एरियाज करे थे ना हमने, इन्वेंट्री, लिटिगेशंस एंड क्लेम, सेगमेंट इंफॉर्मेशन। एम आई करेक्ट? फिर हमने अभी रिसेंटली कवर किया 550 दैट वाज रिलेटेड पार्टीज एंड 560 सब्सिक्वेंट। जितनी बार रिवाइज करोगे ना उतनी में, क्योंकि एग्जाम में स्टैंडर्ड नंबर और अगर आपने स्टैंडर्ड नेम कोट कर दिया तो आपको हाफ मार्क एक्स्ट्रा मिलते। मान लो क्वेश्चन आ गया, तुम्हें मालूम है कि ये क्वेश्चन सब्सिक्वेंट इवेंट का है, तो तुम्हें नेम तो मालूम है, बट यू आर कंफ्यूज बिटवीन वर्ड
या 550 था या 560 था, दैट काइंड ऑफ कंफ्यूजन इज लीव इट। क्या लिख के आना, एज पर द रेलेवेंट क्वालिटी एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड इशूड बाय ICAI। What is the best line to escape? As per the relevant quality and assurance standard issued by whom? When you have to use this line? When you are confused in the numbers. लेकिन अगर तुम 100% certain हो कि ये 560 का ही क्वेश्चन है तो लिख के आ जाना, as per 560 subsequent event, this is a course of action auditor should take. Simple. समझ में आ रहा है सर? तो अपने पास हर चीज का सोल्यूशन है, बस तुम्हें कॉन्सेंट्रेट करना है क्लास में, ठीक है। अभी अपना 570 है, ये वर्ड तो तुम्हारे लिए एलियन होगा, सुना है कहीं पे? कहां पे सुना है? AS1 में। AS1 का मतलब क्या है? अकाउंटिंग पॉलिसी, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग। ये वर्ड दो लोगों के साथ आता है, देयर आर अदर टू वर्ड्स आल्सो अलोंग विद दिस वर्ड कम्स इन योर AS1। ये अपने 3 फंडामेंटल assumptions of accounting है। What are the 3? Going concern, accrual, consistency। तो मेरे को ये क्वेश्चन मार्क है कि सर ये गोइंग कंसर्न बेसिकली वी आर चेकिंग माई गोइंग कंसर्न और वी आर चेकिंग क्लाइंट्स गोइंग कंसर्न, तो वो तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। ऑडिटर को क्यों टेंशन दे रहे हो बाय इंट्रोड्यूसिंग 570 इन इस पोर्शन? मैं तो बताता हूं, जो मैनेजमेंट होती है ना वो सबसे ज्यादा डम होती है। द मोस्ट डम्बेस्ट थिंग यू विल एवर सी इज व्हाट? मैनेजमेंट। दे नो ओनली वन थिंग, हाउ टू अर्न द money, profits, how to run the business. ये legalities, laws and regulations, standards and all, they don't know. For that only they hire the chartered accountants who will help them in accounting and what? Auditing. ठीक है ना? तो मैनेज, अब मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। 5 years back, SBI, State Bank of India, was running behind a company कि भैया लोन ले लो, प्लीज लोन ले लो, प्लीज लोन ले लो, like that. But 5 years later on, this company is running behind SBI, लोन दे दो, लोन दे दो, लोन दे दो, is like that. अब तुम मुझे बताओ 5 years में हुआ क्या? Going concern of the company went up or going concern of the company went down? मतलब कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस इन द मार्केट went up or down? That's the reason this banker is ready to give the loan or ignoring it. अब ये कंपनी को रियलाइज नहीं होता, कंपनी does not think it in this way. We think it in this way because we are the financial doctors. हमें पता है कि why the banker is not giving you the meeting का time or why the banker is not ready, interested in meeting you, because he knows that you will ask a what? Loan. And why banker is not interested in giving the loan? That is the biggest question mark. Because do you have a good repayment capacity or you have a poor repayment capacity? So why the banker would like to give a loan to a company which cannot repay the loan back? अब तुम्हें जो है, और ये लोन रीपेमेंट का प्रॉब्लम ओनली हैपेंस व्हेन योर गोइंग कंसर्न इज अप और डाउन। चलो एक और एग्जांपल देता हूं। 1 year back there was one creditor who used to give me 180 days of credit. कितने दिन का क्रेडिट देता था? मतलब he used to supply me a raw material and I used to make him a payment after 6 months. बट आज वही क्रेडिटर मेरे को बोलता है कैश ऑन डिलीवरी, भैया कैश दो, रॉ मटेरियल ले जाओ। अब बताओ तुम्हारी क्रेडिट वर्दीनेस इन फ्रंट ऑफ दैट क्रेडिटर इज हायर और लोअर? इट मींस इट्स अ साइन ऑफ गुड गोइंग कंसर्न और पुअर गोइंग कंसर्न। मैनेजमेंट विल इग्नोर इट बट हु शुड नॉट? ऑडिटर। क्योंकि मेरे को ये सारे इंडिकेशंस किसको बताने हैं? यूजर्स को, कि कंपनी में ये हो रहा है, लोन्स आर गेटिंग रिजेक्टेड, क्रेडिटर्स बोल रहे हैं कैश ऑन डिलीवरी करो, सीईओ सीएफओ ऑफ द कंपनी लेफ्ट but no one is ready to come as a CEO and CFO of your company. It means not any single person in this world is ready to join your company. Are you a good company or a poor company? Poor. That is also a poor indication of what? Going on. इसे हम लोग बोलते हैं operational indication. Which indication? अच्छा, debt by equity का फॉर्मूला मालूम है ना अपने को? Debt by equity का फॉर्मूला क्या है? Debt divided by equity. अगर वो 7:1 है तो what does that mean? तुम्हारे पास डेट कितना है? 7, और तुम्हारे पास ओन कितना है? 1। मतलब योर कंपनी इज फुली अंडर द व्हाट? डेट। यू आर इन अ डेट ट्रैप। डू यू थिंक दैट एनी बैंकर वुड लाइक टू गिव इवन अ सिंगल रुपी ऑफ लोन टू यू? नो। दैट्स अ साइन ऑफ गुड गोइंग कंसर्न और पुअर गोइंग कंसर्न। दैट इज द रीजन दिस स्टैंडर्ड इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन योर पोर्शन।
कि समटाइम्स मैनेजमेंट में इग्नोर इट, बट हु शुड नॉट? ऑडिटर। तो बेसिकली ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट। लेकिन ये सेकेंडरी किसकी है? ऑडिट। क्योंकि आई एम वेरी लॉयल टुवर्ड्स माई यूजर, और मेरे को यूजर्स को बताना पड़ेगा कि कंपनी का गोइंग कंसर्न इज गोइंग अप और गोइंग डाउन। क्लियर है? ठीक है। सो अभी मीनिंग ऑफ द गोइंग कंसर्न पे आई विल नॉट कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि मीनिंग ऑफ द गोइंग कंसर्न यू ऑलरेडी नो। कोई बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय गोइंग कंसर्न? In your own language also, no problem. I'm not asking you the exact definition. I'm asking the meaning. What do you mean by going concern? Do we open a business today to shut it down tomorrow, or for a long term? Foreseeable future or unforeseeable future? ये वर्ड तो सुना हुआ है कहीं पे, लेकिन याद नहीं आ रहा फोर्सेबल था या अनफोर्सेबल फ्यूचर? फोर्सेबल फ्यूचर। Are you getting it? तो do we open a company today to liquidate it tomorrow? अब तुम टाटा का एग्जांपल लो। अब टाटा 160 प्लस इयर्स ओल्ड कंपनी है, मतलब 160 साल हो गए टाटा को, अभी भी स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग। एयर एशिया मालूम, एयर इंडिया मालूम है, वो गवर्नमेंट को रतन टाटा के ग्रेट ग्रैंडफादर ने गिफ्ट किया था। इट मींस एयर इंडिया वाज ऑलरेडी बिलोंगिंग टू विच ग्रुप? दे गिफ्टेड इट टू government. Government was able to run it or unable to run it? रतन टाटा took it back. अब तुम सोचो ये कितनी पुरानी कंपनी होगी। एसबीआई देख लो 100 प्लस इयर्स का बैंक है, रिलायंस देख लो 50-60 इयर्स ओल्ड कंपनी है, इन्फोसिस को 20-25 इयर्स हो गए। तो ऑल दैट शोज दैट कि दीज कंपनीज हैव अ स्ट्रॉन्ग व्हाट गोइंग कंसर्न। इसीलिए ये कंपनीज आज भी एलिफेंट कंपनीज के नाम से जानी जाती हैं। अब तुम्हें मालूम है निफ्टी, मालूम है निफ्टी? एनएससी को अपन क्या बोलते हैं? निफ्टी। इसे निफ्टी 50 बोलते हैं। 50 का मतलब क्या है? इट्स अ वैल्यूएशन। निफ्टी इज अ वैल्यूएशन ऑफ द टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया। वैसे बीएससी है जिसे अपन सेंसेक्स बोलते हैं, तो सेंसेक्स इज अ मिक्स ऑफ व्हाट? टॉप 30 कंपनीज। मतलब जब ये कंपनीज इंक्रीज होती है तो मार्केट अप जाती है, ये कंपनीज का प्रॉफिट में लॉस में होता है तो मार्केट क्या जाती है? डाउन। मतलब पूरी स्टॉक मार्केट ये 50 और 30 कंपनीज के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए इन्हें जायंट कंपनीज बोलते हैं, एलिफेंट कंपनीज बोलते हैं, लार्ज कैप कंपनीज बोलते हैं। समझ में आ रहा है? इनका गोइंग कंसर्न कभी भी पुअर नहीं हो सकता। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूं। अब रतन टाटा है, रतन टाटा ने 2008 में क्या किया? रतन टाटा स्टील वाज द वर्ल्ड्स 17th लार्जेस्ट कंपनी। कितना? और यूरोप में कंपनी थी कोरस, जो वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट कंपनी थी। किसने किसको एक्वायर किया होगा? देखा जाए तो लॉजिकली देखा तो कोरस कैन एक्वायर होम टाटा, लेकिन यहां पे रिवर्स मर्जर हुआ था। यहां पे 17th लार्जेस्ट कंपनी एब्सॉर्ब्ड होम 3rd लार्जेस्ट, और उसके लिए उसे $50 बिलियन का लोन चाहिए था। कितना? एवरी बैंक केम इन फ्रंट टू गिव द लोन टू द रतन टाटा विदाउट आस्किंग अ सिक्योरिटी, एंड रतन टाटा रीपेड इट विद इन हाउ मेनी ईयर्स? अब तुम मुझे बताओ, व्हाई द बैंकर्स वर इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग रतन टाटा? बिकॉज ऑफ गुड जीसी और पुअर जीसी? गुड जीसी। ये होता है कंपनी की क्रेडिट वर्थिनेस। मतलब कंपनी की गुडविल इतनी अच्छी है, ब्रांड इमेज इतनी अच्छी है कि मतलब ब्लाइंडली वो तो, जैसे यार आजकल तुमने पता होगा ना सिबिल स्कोर, क्रेडिट स्कोर, अगर आपका 750 आउट ऑफ 900 है, यू आर एलिजिबल टू गेट व्हाट? लोन्स। आप अपना सिबिल स्कोर चेक करो, सबका 0 होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी अभी तक कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है। अब मेरे पास कितने की क्रेडिट कार्ड लिए मैंने, कितने की एक होम लोन लिया था, कार लोन लिया था, तो उससे क्या होती है? आपकी क्रेडिट हिस्ट्री डेवलप होती है। अब मेरा क्रेडिट स्कोर है 814 आउट ऑफ 900। कितना है? मतलब मेरी एक भी इंस्टॉलमेंट आज तक कभी फेल नहीं हुई, या मतलब सरपास नहीं हुई, या मतलब बाउंस नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। तो जैसे ही आप सब टाइम पे करते हो ना, तो आपका सिबिल स्कोर क्या होता है? इंक्रीज। और आज के टाइम पे अगर मैं किसी बैंक के पास जाता हूं और एक्स अमाउंट का लोन लेता हूं, तो बैंकर इज रेडी टू गिव मी विदाउट इवन आस्किंग एनी डॉक्यूमेंटेशन और सिक्योरिटी। ऑब्वियसली सिक्योरिटी तो पूछेंगे थोड़ा बहुत, बट दे विल नॉट बी रिलक्टेंट इन गिविंग मी अ लोन, क्योंकि अपना सिबिल स्कोर अच्छा है। तो आज के टाइम पे एक इंडिविजुअल के पास सबसे बेस्ट चीज क्या होनी चाहिए? सिबिल स्कोर। वैसे ही कंपनी के पास सबसे बेस्ट क्या होना चाहिए? गोइंग कंसर्न। अगर आपकी गोइंग कंसर्न अजम्पशन स्ट्रांग है, तो people will be ready to give you n number of loans and n amount of loans.
आर यू गेटिंग द पॉइंट? बट वो स्ट्रांग है या नहीं है उसे एग्जामिन कौन करेगा? ऑडिट. पीपल बिलीव ऑन हुज रिपोर्ट, वही स्टैंडर्ड है. समझ में आ रहा है? तो स्टैंडर्ड में अपना फर्स्ट टॉपिक क्या है भैया? मीनिंग में आई विल से दैट यू प्लीज रेफर फॉर द मीनिंग AS1, क्योंकि AS1 का सेम मीनिंग वी हैव कॉपी पेस्टेड इन 570. बट व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? रीड दिस टॉपिक. ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर इन रिलेशन टू विच असम्पशन? ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर जब अपन करते हैं ना, तो अपने को ये 3 C याद करने हैं. व्हाट आर द 3 C's? C नंबर 1 कंसिडरेशन, सेकेंड कलेक्शन एंड थर्ड इज व्हाट? कम्युनिकेशन. तो ये याद रखना, ऑडिटर के 3 ड्यूटीज हैं: कंसिडर करना, कलेक्ट करना, कम्युनिकेट करना. कंसिडर क्या करना? अब तुम मुझे बताओ, बिफोर मेकिंग एनी ऑडिट व्हाट डज द ऑडिटर मेक्स? सबसे पहले ऑडिटर क्या करता है? प्लानिंग का मतलब क्या होता है? AKOCB होता है. व्हाट इज AKOCB? एक्वायरिंग द नॉलेज ऑफ क्लाइंट. क्या मेरे को क्लाइंट का गोइंग कंसर्न के बारे में पता होना चाहिए? हाँ, आई शुड नो अबाउट द क्लाइंट्स विच कंसर्न. तो इसका मतलब जब मैं अपनी चेकलिस्ट बनाऊंगा, व्हेन आई विल मेक माय व्हाट प्रोग्राम, डू आई हैव टू डू अ चेकलिस्ट लाइक दिस, और यहां पे एक GC लिखूंगा. डू आई हैव टू एग्जामिन द GC ऑफ माय क्लाइंट? Is going concern examination going to be one of my verification step which I am going to apply on the client's financial statement? Yes. तो उसे उन बोलते हैं first duty. What is the first duty? Consideration. What is the first duty, everyone? So whenever the auditor is going to make an audit plan and program, he should first consider checking the which assumption? Going concern. उसे बोलते हैं consideration. अब पढ़ो consideration का meaning पढ़ो. Read the meaning under the consideration. Auditor, while planning, strategizing and programming his what? Audit, he shall consider or he shall include checking of which assumption? Going concern as one of his verification step in the checklist. समझ में आ गया? तो ये हो गया consideration. अब तो मुझे बताओ, मेरे को पता चला कि client's going concern is very poor. अब मैं क्लाइंट के, मैं MD का डोर नॉक कर रहा हूं. मैंने कहा सर मैं कम इन. उन्होंने बोला आओ. सर आपकी गोइंग कंसर्न बहुत डेड है, इट्स वेरी पुअर, इट्स नेगेटिव. उन्होंने क्या बोलेगा? रोहित डू यू हैव एविडेंस? डू यू हैव अ प्रूफ? तो इसका मतलब मेरी सेकंड ड्यूटी क्या है? कलेक्शन. तो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू स्पिट आउट अबाउट द नेगेटिव गोइंग कंसर्न assumption of the client, always go with what? Evidence. Never open up your mouth about the going concern assumption until and unless you don't have sufficient what? Audit evidence. तो इसका मतलब C पढ़ो, सेकेंड C पढ़ो. Auditor's responsibility is to ensure that necessary and supporting SAAE. What is SAAE? अब जैसे ये वर्ड SAAE आया, हमें समझ में आ रहा कि 500 सीरीज पूरी किसके ऊपर है? ऑडिट एविडेंस. और इसका नंबर क्या है? 570. इसका मतलब इसमें भी अपन अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं? कलेक्शन ऑफ व्हाट? ऑडिट एविडेंस. बट नाउ ऑन विच बेसिस? Going concern. So what is the auditor's responsibility? His responsibility to ensure that necessary and supporting sufficient and appropriate audit evidence must be collected by him to support his opinion on what? Going concern. If it is inappropriate. अगर appropriate, अच्छा तुम मेरे को ये बताओ, तुम क्लाइंट के पास जाओगे, सर आपकी गोइंग कंसर्न बड़ी मस्त है सर, तो तुम्हें बोलेगा क्लाइंट मेरे को एविडेंस दो? क्लाइंट कब एविडेंस पूछेगा? पॉजिटिव वे में और नेगेटिव में? तो मेरा दूसरा C समझ में आया. पहला C क्या था? कंसिडरेशन. मेरे को अपने प्लानिंग में इंक्लूड कर रहा है किसको? गोइंग कंसर्न. सेकंड C क्या है? कलेक्शन. मेरे पास नेसेसरी एंड सपोर्टिंग ऑडिट एविडेंस होना चाहिए व्हेन आई एम स्पिटिंग समथिंग अबाउट द इनएप्रोप्रिएटनेस ऑफ व्हिच असम्पशन? गोइंग कंसर्न. अब तुमने ये बताओ मेरे को, तुमने ये एविडेंस कलेक्ट क्यों किए? फॉर योर पर्सनल सेटिस्फेक्शन और टू कम्युनिकेट इट टू द मैनेजमेंट, so that what can happen? So that remedial actions can be taken. What do you mean by remedial action? देखो सर, दो तरह की सिचुएशन होती है. सिचुएशन नंबर 1, अभी तुम्हारे पास 4 मंथ्स है टू प्रिपेयर. जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर, 5 मंथ्स है. तो अभी अगर तुम सुधर जाओगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा. लेकिन अगर तुम ये रियलाइजेशन अक्टूबर मंथ में करोगे कि शिट यार मैंने पढ़ा नहीं, आई शुड हैव डन. नाउ टेल मी, डैमेज इज येट टू बी डन और डैमेज इज ऑलरेडी डन? Where there is a remedial action can be taken, where can't? Now it can be, but at that point of time, possible or not possible? ऐसे सेम ऑडिटर बोल रहा है जितना जल्दी मेरे को उनका GC के बारे में पता चलेगा
more and more audit evidence I'll collect and I'll communicate directly to whom? Management and TCWG, so that what can be done? Remedial or corrective actions can be taken. क्योंकि prevention is better than cure. अगर मेरे को डैमेज दिख रहा है बट वो थोड़ा दूर है, देखो सर अपना एक पाथ होल है रोड के ऊपर, तुम्हें दिख गया, तो डू यू वांट टू सी द डेप्थ ऑफ दैट? उसके अंदर ढक करके, हाँ अच्छा पाथ होल है, और यू वांट टू गो फ्रॉम द साइड, तो वही तो हो रहा है गोइंग कंसर्न. अगर तुम्हें पता चल गया कि हाँ भी फ्यूचर में डैमेजिंग हो रहा है, इट इज स्टार्टेड डैमेजिंग द कंपनी, तो वुड यू लाइक टू रेमेडाइज इट इन द अपफ्रंट और यू वुड लाइक टू वेट फॉर द डैमेज टू कम? हम लोग अपन प्रोएक्टिव बनेंगे, हाँ तुम्हारे एसएम का प्रोएक्टिव बनेंगे या रिएक्टिव बनेंगे? प्रोएक्टिव. Am I correct or no? I would not allow that damage to happen to me. That is called proactive strategy. तो वही अपन कर रहे हैं. What is the third C? Communication. Read the third C, everyone. Auditor is under an obligation to ensure that it is communicated to the management and TCWG so that what can be taken? Remedial measures can be taken. अब तुम मुझे बताओ, what are the 3 duties of an auditor? Super easy. पहली क्या थी? Consideration. जब भी ऑडिटर प्लान करेगा, स्ट्रेटेजाइज करेगा, प्रोग्राम करेगा, तो अपनी चेकलिस्ट के अंदर एक वर्ड को ऐड करेगा, वेरिफिकेशन ऑफ गोइंग कंसर्न असम्पशन. ही मस्ट कंसीडर और मे कंसीडर? मस्ट कंसीडर. तो कंसीडर वर्ड आ गया, तो इसका मतलब फर्स्ट ड्यूटी इज ओवर. दैट इज कॉल्ड कंसीडरेशन. व्हाट इज माय सेकंड ड्यूटी? So whenever the auditor is going to say something about the inappropriateness of the which assumption, going concern assumption, he should always make sure that he is having necessary and supporting audit evidence in his hand. And third one, why he collected it? To communicate it to the management and TCWG so that what can be taken. सर याद रखना, स्टैंडर्ड्स को अपन को हमेशा कैसा पढ़ना है? स्टैंडर्ड्स को एज अ स्टोरी पढ़ना है. द मोर एंड मोर यू विल लर्न द स्टैंडर्ड एज अ स्टोरी ना, द मोर एंड मोर इट विल गो इनसाइड योर हेड. यहां तक कोई डाउट है तो बोलो. व्हाट आर द 3 ड्यूटीज? रीड द वर्ड. कंसिडरेशन, और सीक्वेंस में लिख के आना. पहले कंसिडर करेंगे, फिर कलेक्ट करेंगे, फिर कम्युनिकेट करेंगे. क्लियर है? अब ये टॉपिक पढ़ो. ये क्या है? ये थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, बट आई थिंक यू विल बी एबल टू मैनेज इट. व्हाट इज दिस टॉपिक? असेसमेंट ऑफ टाइम पीरियड फॉरवर्ड. सुनना ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं, थोड़ा टेक्निकल है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. ओके, कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर में डिफरेंस होता है. कैलेंडर ईयर कब होता है? जैन टू दिसंबर. फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च. वैसे ही ऑडिटर का टाइम पीरियड ऑफ गोइंग कंसर्न एंड मैनेजमेंट का टाइम पीरियड ऑफ गोइंग कंसर्न में चेंज समटाइम्स. राइट और नॉट? I may think that something is important or not important by taking the one financial year का time gap, मतलब अप्रैल टू मार्च. But company may think the same going concern from the Jan to December. तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है, मिसमैचिंग है. It will be difficult. So whenever you are talking about the going concern ना, make sure that कि your time period of going concern and the management's time period of going concern should, then only you will be able to show them the true picture. समझ में आ रहा? अब सुनना ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? Read the heading now. Assessment of time period for which concern? Read the point number 1. Generally adopted for same period what the management adopt. मतलब देखो, मैनेजमेंट का ड्यूटी क्या है? टू अडॉप्ट वन टाइम पीरियड विद इन विच दे विल एनालाइज कि देयर जीसी assumption is good or not. तो ऑडिटर शुड ऑल्सो ट्राई टू अडॉप्ट द सेम टाइम पीरियड कि whether his time period and management time period is matching or not. Then only you will be able to spit out something. Otherwise जब भी तुम मैनेजमेंट को बोलोगे ना कि सर आपका गोइंग कंसर्न इज इन डेंजर, तो मैनेजमेंट बोले व्हाट इज योर टाइम पीरियड ऑफ गोइंग कंसर्न? सो माय टाइम पीरियड इज अप्रैल टू मार्च. उन्होंने बोल रहे मैं कंसीडर करता हूं जैन टू दिसंबर. तो मैचिंग और मिसमैचिंग. So it's better to always adopt that time period which who is adopting? Management. Rule number 1 clear? Rule number 2 padho. If the management's assessment period is what? Then request the management to make it to what? 12 months. क्योंकि नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर कितने मंथ्स का होता है? 12 मंथ. हो सकता है कि मैनेजमेंट कंसीडर कर रही हो वी रिव्यू अवर गोइंग कंसर्न assumption आफ्टर एवरी 10 months. आफ्टर एवरी, बट मैंने मैनेजमेंट को बोला, मैंने कहा सर 10 मंथ्स कर रहे हो तो व्हाई डोंट यू टेक इट अप टू व्हाट? 12 मंथ्स.
अब if I will do it under the 10 months, it will be difficult for me because you are only not the company which I am doing the audit. I am doing the audit for what? Other company. हर जगह मैं 12 months का consider करता हूँ. You are adopting it for 9 or 10 months. Please make it to what? 12 months. So what is the rule number 2? If the management's assessment period is what? Less than 12 months, then request to make it to what? 12 months at least. What is my third point? If the management's period is greater than equals to what? 12 months, then it is what? Justified. अगर 12 महीने से ऊपर है ना तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं. क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि मैनेजमेंट इज हैविंग अ लॉन्गर विजन नाउ. विच विजन? वो 12 महीने से ज्यादा, मतलब दे आर कंसिडरिंग द डेंजर टू कम टू देम मोर देन हाउ मेनी मंथ्स फार अवे? 12 months. मतलब दे आर लुकिंग एट द डेंजर ऑन द 13th month, which is going to means what? Management's thinking process or thought process is limited or is stronger? Stronger. They're thinking about 13 months later on. Okay, what is going to happen? Suppose अगर मैनेजमेंट का, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल, तुमने लोन लिया 2019 में फॉर हाउ मेनी इयर्स? 5 years. 2019 में लोन लिया फॉर हाउ मेनी इयर्स? एंड बैंकर गिव अ कंडीशन दैट आई विल रिन्यू योर लोन फॉर अनदर 5 years if will show me a 30% growth in the company. अब मैनेजमेंट को मालूम है कि 2024 में लोन क्या होने वाला है? मैच्योर होने वाला है, एंड आई विल बी एबल टू गेट इट रीन्यूड ओनली व्हेन I will show how much growth and what is the month going on right now and what I should be worried about 31st March 2024. अब मेरे को बताओ ये गोइंग कंसर्न कितना चेक कर रहा हूं मैं? Is it 12 months or more than 12 months? भाई मैनेजमेंट इज गुड क्योंकि मैनेजमेंट इज लुकिंग एट इट्स फ्यूचर ऑफ ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट 21 months फ्रॉम नाउ. समझ में आ रहा है? अभी जून चल रहा है एंड दे आर थिंकिंग अबाउट व्हाट? March 2024. How many months before they are thinking? 21 months before the March 24 they are thinking that what to do, what to know. They are worried because they have to show the growth of what? 31. So don't you think that it's a sign of good management or poor management? Good management. तीनों पॉइंट समझ में आए technically? So tell me, what is my point number 1? Generally, you should adopt the same time period which who is adopting? Management. अगर मैनेजमेंट का टाइम पीरियड 12 मंथ से कम है तो टेल देम टू इंक्रीज इट अप टू एटलीस्ट. लेकिन अगर उनका 12 मंथ से मोर है देन इन दैट केस आई एम ओके, आई एम जस्टिफाइड. तीनों रूल दिमाग में घुस गए सर? आई थॉट दैट बट यू पीपल आर वेरी क्लेवर. बहुत जल्दी कैच कर ले रहे हो, राइट? आंखें ना बताओ मैंने क्या बोला अभी? मेरे को तुम्हारा नहीं सुनाई दिया, तुम्हें मेरा नहीं सुनाई दिया. आवाज है मुंह में? हाँ बोलो. व्हाट आर द 3 points? करेक्ट. वेरी नाइस. थर्ड? परफेक्ट. एम आई करेक्ट? तो अगर जितना कॉन्सेंट्रेशन, अब मान लो ये छोटू सा क्वेश्चन है बट इफ इट विल कम इन द एग्जामिनेशन फॉर मिनिमम हाउ मेनी मार्क्स? 3 marks. तुम्हें सिंपल ये 3 पॉइंट्स लिख के आने हैं एंड यू विल बी एबल टू फेस 3 marks. अब ऑडिटिंग और लॉ पेपर में गुड थिंग इज दैट कि दे आर नॉट लेंदी, दे आर टू द पॉइंट क्वेश्चंस. विच पॉइंट्स? अगर 3 पॉइंट है तुम्हारे स्टैंडर्ड में, यू कैन क्रिएट द 4th ऑन योर ओन. अरे यार मेरे को शर्म आ रही है 3 मार्क के पॉइंट के लिए मैं 3 ही लिख के आऊं क्या? हमने तो सुना था 3 मार्क का क्वेश्चन आया तो इंटू 2 6 पॉइंट्स लेंगे. अब अपने आप क्रिएट करोगे क्या? जब स्टैंडर्ड ही उतना बोल रहा है तो उतना ही लिख के आओगे ना भाई. तो स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है? पहले क्या करो, मैनेजमेंट और तुम्हारा अडॉप्शन मेथड सेम होना चाहिए. उसका लेस देन 12 मंथ्स हो तो उसको बोलो रिक्वेस्ट करो टू इंक्रीज इट टू 12. अगर वो मोर देन इक्वल्स टू 12 मंथ्स कर रही है तो जस्टिफाइड. क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है पूरा. अच्छा मैंने तुम्हें रूल बताया था ना, 50% ऑफ द अंडरस्टैंडिंग कम्स फ्रॉम व्हाइल रीडिंग द हेडिंग. इसकी हेडिंग पढ़ो जस्ट. इंडिकेटर्स इंडिकेटिंग द इनएप्रोप्रिएटनेस ऑफ. इसका मतलब व्हाट काइंड ऑफ इंडिकेटर्स वी आर गोइंग टू लर्न, which are indicating that GC is good or which are indicating that GC is bad. Are you getting the point? Because what is the word used here?
इन अप्रोप्रिएटनेस ऑफ गोइंग, क्योंकि अप्रोप्रिएटनेस के कोई इंडिकेशंस नहीं होते, इंडिकेशंस आर ऑलवेज देयर फॉर व्हाट, इनफ। अब हमने इसे क्या किया, क्या जैसे हमने ट्रिपल सी में डिवाइड किया था, हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। व्हाट आर द 3 पार्ट? फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, ऑपरेशनल इंडिकेटर्स, अदर इंडिकेटर्स। तो व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स? फाइनेंशियल, ऑपरेशनल, अदर। अब सुनना ध्यान से, व्हाट इज द फर्स्ट फाइनेंशियल, ये सारे पता क्या है, दीज 15 to 20 एग्जांपल्स यू विल फाइंड up to this. These all indicators you have to learn. Now sir, it might be looking little bit heavier to you, but let me tell you one thing, once I'll tell you, you will come to know that all these 15-20 examples which I have written, they are the probable questions in your examination. वो ऐसी situation ही create करेंगे which you have to strike off and write कि it is a clear cut case of good GC और poor GC. समझ में आ रहा है? हर एक situation को समझना। What is the situation number 1? बैंक तुम्हारा लोन रिन्यू कर रहा है या नहीं रिन्यू कर रहा? व्हाट डज दैट इंडिकेट? गुड जीसी और पुअर जीसी? इट्स अ विच इंडिकेटर? फाइनेंशियल इंडिकेटर। तुम्हें फाइनेंसिस की प्रॉब्लम आएगी। डिड यू गेट द पॉइंट? अब सेकेंड पॉइंट पढ़ो, मेजर डिस्पोजल ऑफ व्हाट? एसेट। मेरी कंपनी में 90 प्लांट एंड मशीनरीज थे 2 years बैक एंड टुडे इट इज ओनली 9। मतलब मैंने 90% ऑफ माई प्लांट एंड मशीनरीज आई ऑलरेडी वर्ड सोल्ड। कंपनी सेल क्यों करती है? व्हेन एक्टिविटी इज एट पीक और एक्टिविटी इज एट लोएस्ट, प्रोडक्शन हाई और प्रोडक्शन लेस, इट मींस गुड न्यूज और बैड न्यूज, फाइनेंशियल और ऑपरेशनल। फाइनेंशियल, मेजर डिस्पोजल ऑफ द फिक्स्ड एसेट। जनरली it takes a crores and crores of money to run your fixed assets, but you are selling it out. It means instead of purchasing, instead of expansion, you are doing what? Contraction of the business. That's a good sign or poor sign? Poor sign. Major question समझ में आ रहा? What is the third one? Accumulated losses are more than your net worth. तुम्हारी नेटवर्थ 500 crores है, लेकिन तुम्हारे पिछले 5 साल के लॉसेस 1500 crores है। What is your net worth? 500 crores. But your accumulated losses are, मतलब तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है कि तुम अपने लॉसेस को पूरा कर पाओ। That is a good indication or poor indication? When your accumulated losses are more than your net worth. Third, stopped paying dividend since last 5 years or above. तुमने पिछले 5 साल में एक भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया। अब तुम मुझे बताओ, शेयर होल्डर पागल है? उसने तुम्हें पैसा क्यों दिया? इन्वेस्ट करा था इन द सेक ऑफ गेटिंग व्हाट? डिविडेंड। ना तो तुम्हारा शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है, अदरवाइज आई विल बी हैप्पी कि एटलीस्ट माय कैपिटल एप्रिसिएशन इज हैपनिंग, और नाइदर यू आर पेइंग मी व्हाट? डिविडेंड सिंस लास्ट 5 years. तो इट्स अ साइन ऑफ गुड जीसी और पुअर जीसी। नेक्स्ट पॉइंट बढ़ो। करंट रेशियो 0.5:1 है। व्हाट डज दैट मीन? करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट। 0.5:1। व्हाट डज दैट मीन? कि तुम्हारे पास 50 पैसा है टू पे द लाइबिलिटी ऑफ व्हाट? 1 रुपए। तुम लिक्विडिटी वाइज इतने पुअर हो, तुम्हारे डेट बाय इक्विटी रेशियो 7:1 है। व्हाट डज दैट मीन? 7 रुपए का लोन है, 1 रुपए पॉकेट में है, तो कैसे पे करोगे? 6 रुपए का डिफरेंस। तो दैट्स अ साइन ऑफ गुड रेशियोज और एडवर्स। तो एडवर्स फाइनेंशियल रेशियो इज ऑल्सो विच इंडिकेटर? माने हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है? व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? पिछले, अच्छा ये बताओ, कैश फ्लो स्टेटमेंट मालूम है कितनी है? इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, आउटफ्लो ही हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है नहीं हो रहा? तो उसको पॉजिटिव बोले नेगेटिव बोलेंगे? सिर्फ आउटफ्लो हो रहा है, इनफ्लो हो ही नहीं रहा, तो दैट इज ऑल्सो साइन ऑफ पुअर जीसी। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? ये तो तुम्हारा अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है। एक कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्यों करती है, मेरे को बताना। Why does a company go for an internal reconstruction when it is sound or when it is financially unsound? बेसिकली होता क्या? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर हो गया? अच्छा नहीं हुआ, इसीलिए ब्लैंक बैठे हो, नहीं तो तुम तो बहुत क्लेवर हो। सुनो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब, फिर बोलना ना सर हमें नहीं आता, मैं ओवरलैप कर जाता था इसे कि assuming that you know। अब सुनो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? आई एम अनएबल टू रीपे माई लाइबिलिटीज, तो मैं कंपनी को इंटरनली रीस्ट्रक्चर करूंगा, उसे बोलते हैं डेट रीस्ट्रक्चरिंग। विच रीस्ट्रक्चरिंग? मैं अपने क्रेडिटर्स के पास, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास, लेंडर्स के पास, बैंकर्स के पास जाऊंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि सर मेरा जो 5 years का लोन है, प्लीज उसे
10 ईयर्स कर दो और ईएमआई को हाफ कर दो। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? इंक्रीज द लेंथ ऑफ द लोन फ्रॉम 5 years to what and reduce the EMI from 1 crore to what 50 lakhs EMI हाफ। और मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोला कि यू आर 18% प्रेफरेंस शेयर होल्डर, मतलब आई हैव टू पे यू द डिविडेंड एट द रेट ऑफ व्हाट 18, प्लीज मेक इट 8% फॉर द नेक्स्ट 5 years। अब तुम मुझे बताओ व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग माय लेंडर्स टू रिड्यूस देयर बर्डन, बिकॉज आई एम कैपेबल टू पे और इनकेपेबल टू पे। फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रही है, आई एम अ फाइनेंशियली सिक कंपनी, उसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। समझ में आ रहा है? जब ये न्यूज बाहर चली जाती है तो उसे एक्सटर्नल बोल देते हैं। ठीक है, अब सुनो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अरेंजमेंट्स विद होम, क्रेडिटर्स, लैंडर्स, डिबेंचर होल्डर्स, प्रेफरेंस। मैं इनके पास कब जाऊंगा? व्हेन आई एम एबल टू पे देम स्मूथली और व्हेन आई एम अनएबल टू। मैंने इनके सामने हाथ जोड़े, भाई तुम्हें वोटिंग राइट्स दे दूंगा, प्लीज अगले 5 साल में लोन मत पूछना। आई एम अनएबल टू गिव बैक योर लोन, आई विल बी एबल टू गिव बैक ओनली आफ्टर 10 years। और मैंने क्रेडिटर्स को बोला मेरे को 60 days की जगह 180 days का क्रेडिट पीरियड चाहिए। आई वोंट बी एबल टू मेक यू द पेमेंट विद इन हाउ मेनी डेज? I will be able to make you payment only after 180 days. So why do you make such kind of request to these people when you are financially sound or unsound? और ये सारे के सारे एग्जांपल किसके थे? फाइनेंशियल इंडिकेटर्स। These are which indicators of going concern? सेकंड क्या है? इसकी फर्स्ट पॉइंट पढ़ो। टॉप लेवल मैनेजमेंट लेफ्ट बट नो वन इज रेडी टू ज्वाइन। तुम्हारा एमडी छोड़ के चला गया, गालियां बक के जा रहा है, सीईओ छोड़ के चला गया, सीएफओ छोड़ दिया, डायरेक्टर्स छोड़ दे, तुम ऑफर दे रहे हो लोगों को, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो, वैकेंसीज वैकेंसीज वैकेंसीज, बट नो वन इज रेडी टू कम। व्हाट डज दैट इंडिकेट? आर यू अ गुड ऑपरेशनल कंपनी और यू आर अ पुअर वन? तो मींस दैट इज नॉट अ फाइनेंशियल इंडिकेटर, दैट इज अ व्हाट? क्योंकि यहां पे कोई फाइनेंस की बात नहीं हो रही, यहां पे ऑपरेशंस की बात हो रही है, तुम्हारे ऑपरेशंस इफेक्ट हो रहे हैं यहां पे। ठीक है, व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? जो क्रेडिटर था उसने तुम्हें सप्लाई करना बंद कर दिया। When the creditor will stop the supply to you, will you be able to maintain the reorder level of quantity? No. So shortages of supply leads to the breakdown in what? Production activity. Which activity? तुम्हारे पास सप्लाई रॉ मटेरियल ही नहीं है तो फिनिश गुड्स कहां से प्रोड्यूस करोगे? समझ में है ना? इनपुट ही नहीं है तो बताओ, दैट इज अगेन विच इंडिकेटर? ऑपरेशन। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि तुम ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग करवा सको अपनी किसकी? प्लांट एंड मशीनरी। तो ब्रेकडाउन तो हो गई ना सर? तो बताओ, दैट इज अगेन अ फाइनेंशियल इंडिकेटर और ऑपरेशनल? तो बताओ मेरे को 4 एग्जांपल ऑपरेशनल के। अच्छा सॉरी, हमने करे 3 है अभी तक। 3 एग्जांपल बताओ। टॉप लेवल मैनेजमेंट लेफ्ट, नो वन इज रेडी टू ज्वाइन, शॉर्टेजेस ऑफ सप्लाई। ये वर्ड तुम्हारा कॉस्टिंग का है, कृष्णा करोड़ा सर ने पढ़ाया होगा। लेबर टर्नओवर इज हाई, व्हाट डज दैट मीन? एम्प्लॉइज आर कमिंग और लीविंग, और हर साल ये टर्नओवर रेशियो बढ़ती जा रही है। इट मींस यू आर नॉट अ गुड एम्प्लॉयर, तुम्हारे ऑपरेशंस में प्रॉब्लम है। ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? नॉन मेंटेनेंस ऑफ रीऑर्डर लेवल ऑफ क्वांटिटी। रीऑर्डर लेवल ऑफ क्वांटिटी क्या होता है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी चैप्टर में पढ़ा होगा तुमने। It is a minimum level of stock which you always have to maintain, and it triggers that कि you have to generate an MRN again. What is MRN? Material Requisition Note. उस level of reorder level of quantity को अपन क्या बोलते हैं? Minimum stock maintenance. What do we call it as? But you are able to maintain or unable to? Reorder level touch हुआ 1 month हो गया, but you have still not placed an order. It means you are capable or incapable. Or you are capable, but creditor is not ready to give you the goods on credit. Next point, major revenue generating product is completely what? तुम्हारा एक प्रोडक्ट था जिससे तुम्हें 70% टर्नओवर आता था। कितना टर्नओवर? Your 70% of the sales were dependent upon that product. अब that product is completely out of the market. अब बताओ, that revenue is still there or not there? अगेन विच इंडिकेटर? ऑपरेशनल इंडिकेटर। ये सारे तुम्हारे किसके एग्जांपल्स है सर? ऑपरेशन। अभी अपन करेंगे लास्ट इंडिकेटर, कौन सा? अच्छा, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, वट एवर द एग्जांपल्स आई एम टेलिंग यू, दे आर द क्वेश्चंस इन इटसेल्फ। दे मे आस्क यू द क्वेश्चंस बाय ड्राफ्टिंग इट इन दिस वे। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट एवरीवन? अदर्स। अदर्स में फर्स्ट पॉइंट पढ़ो। मैं तुम्हें सिंपल वे में पूछूंगा एसएम का क्वेश्चन। ये तुम्हारा माइक्रो इन्वायरमेंट है, मैक्रो है? तुम कुछ कर सकते हो? गवर्नमेंट
तुम जो बिजनेस कर रहे थे गवर्नमेंट ने उसको फुल स्टॉप कर दिया, मतलब दिस बिजनेस इज अलाउड टू रन और नॉट अलाउड। अब तुम जाओ, योर गोइंग कंसर्न इज डाउन और कंप्लीटली जीरो, इट इज नाइदर योर फाइनेंशियल इंडिकेटर नॉट। तुम फाइनेंशियली सिक कंपनी नहीं थे, तुम ऑपरेशनल वाइज भी अच्छे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज कर दिए, ड्यू टू विच योर फास्ट रनिंग बिजनेस बिकेम व्हाट, जीरो। दैट इज अ विच इंडिकेटर, अदर, नाइदर फाइनेंशियल और ऑपरेशनल। नेक्स्ट वन, स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स कब होती है? जब लेबर यूनियन इज हैप्पी विद यू और अनहैप्पी विद यू। इज इट इन योर कंट्रोल और आउटसाइड योर कंट्रोल? अगेन इट इज अ विच इंडिकेटर, अदर। लॉकडाउन इन पेंडेमिक सिचुएशन, ये तो रिसेंटली ऐड हुआ, मैं नहीं करा है। अब पेंडेमिक सिचुएशन में लॉकडाउन होगा, अब लॉकडाउन में मतलब क्या, यू कैन रन और यू कांट रन, तुम्हें घर पे ही बैठना पड़ेगा। अगेन इट इज अ रूल इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, तो इट इज नाइदर फाइनेंशियल नॉर ऑपरेशनल, इट कम्स अंडर व्हाट। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मोर पेनल्टीज, पनिशमेंट्स, असेसमेंट्स एंड व्हाट। तुम्हारा जीएसटी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, इनकम टैक्स ने भी रेड कर दी, उधर से एक्साइज वालों ने भी रेड कर दिया, इधर आरओसी ने इंक्वायरी डाल दी, इधर सेबी ने रेड कर दी, मतलब रेड ही रेड हो रही है तुम्हारी, एक खत्म नहीं हो रही दूसरी रेड आ रही। अच्छा, व्हाई डिपार्टमेंट्स वुड लाइक टू इंटरफेयर एंड पोक देयर नोज इन योर कंपनी व्हेन यू आर अ गुड पेयर ऑफ टैक्स और पुअर पेयर, और you when you are a good compliance of rules and regulations or violator? Again this is your which indicator, other indicator। तो तुम्हें एग्जाम में ये कैटेगराइज करना है कि वो एग्जाम्पल फाइनेंशियल इंडिकेटर की है, ऑपरेशनल है, अदर से। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इट इन द एग्जाम। इज इट क्लियर? ठीक है, तो दिस इज व्हाट ब्रिंग्स एन एंड टू योर अनदर टॉपिक ऑल्सो कॉल्ड गोइंग कंसर्न। खत्म नहीं हुआ, नहीं, डोंट टेक मी रॉन्ग, खत्म नहीं हुआ। 3 टॉपिक्स वी आर डन विद। व्हाट आर द 3? ड्यूटीज में कंसीडरेशन, करेक्शन एंड कम्युनिकेशन हो गया। फिर अपना हो गया असेसमेंट ऑफ टाइम पीरियड फॉर विच कंसर्न, गोइंग कंसर्न। फिर अपना हो गया इंडिकेटर्स इंडिकेटिंग द पुअर इंडिकेटर्स ऑफ गोइंग कंसर्न। ये लास्ट टॉपिक करेंगे, यहाँ एक काम करते हैं, ये वाला कल करेंगे, ये वाला करते हैं टॉपिक। कल सैटरडे है ना, क्लासेस है ना कल? संडे को किसकी क्लास है? वो तो एज यूजुअल है। और बताओ कुछ नई चीज? लॉ एंड कॉस्टिंग इज ऑन द एज ऑफ कंप्लीशन, राइट? तो कल अपन, ठीक है, कल अपन एक ऐसा टॉपिक करेंगे विच इज इंडिविजुअल, सो दैट वी कैन मैनेज टू कंप्लीट इट इन अ सिंगल डे। ओके, चलो ये टॉपिक करते हैं पहले। व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉपिक? अच्छा, ये हेडिंग क्यों कट हो जा रही है यहाँ पे? जूम ज्यादा किया हुआ है क्या? टॉपिक पढ़ो, व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉपिक। और नीचे क्या लिखा हुआ है? लेकिन ये हम कर किस स्टैंडर्ड में रहे हैं? 5 हर एक स्टैंडर्ड में रिपोर्टिंग वर्ड आएगा ही आएगा। 510 में भी हमने रिपोर्टिंग करी, 550 में भी रिपोर्टिंग करी, 560 में भी रिपोर्टिंग है। एवरीवेयर यू विल हैव द इंडिकेशन टुवर्ड्स 700। तो इट्स नॉट गुड फॉर अस इफ विल डिले 700 सीरीज। तो इट्स बेटर टू डू द 700 सीरीज इमीडिएटली आफ्टर दिस चैप्टर कॉल्ड एविडेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन। समझ में आ रहा है? पहले हेडिंग पढ़ो, क्या लिखा हुआ? As per essay 700 R, R stands for revised। यहां पे तुम्हें 3 कॉलम दिखेंगे। What are the 3 columns you are able to see? Clean, एक मिसिंग है। क्यों मिसिंग है? अच्छा ये बताओ, ट्रिपल सी याद है? ट्रिपल सी, पहला सी क्या था, दूसरा क्या था? भैया जीसी तो हो ही नहीं सकता विदाउट व्हाट? एविडेंस। Can we do the examination of the going concern assumption with evidence or without evidence? With evidence। तो जब अपने पास एविडेंस है तो डिस्क्लेमर इज एन ऑप्शन और नॉट एट ऑल एन ऑप्शन। तो इसी का मतलब इट मींस अदर देन आउट ऑफ 4 वी आर ओनली लायबल टू गिव व्हाट? 3। कभी भी याद रखना, जब किसी से कुछ लर्न कर रहे हो, वेदर यू आर लर्निंग इट फ्रॉम मी और एनीबडी एल्स, ट्राई टू हैव अ हैबिट ऑफ आस्किंग द क्वेरीज। जितना ज्यादा दिमाग दौड़ाओगे ना कि सर यहां पे 4th वाला क्यों नहीं दिख रहा, ये मैंने तुम्हें बताया कि 4th वाला क्यों नहीं दिख रहा। अगर मैं तुम्हें लेमन के जैसे स्टैंडर्ड बता देता, डोंट ब्लाइंडली फॉलो द अदर पर्सन हु इज सिटिंग ऑन दिस साइड। समझ में आ रहा है? द मोर एंड मोर यू विल बी इंक्विजिटिव इन नेचर, द मोर एंड मोर यू आर क्यूरियस इन नेचर, द बेटर योर लाइफ विल बी। क्योंकि तुम्हें ये सारी चीजें अपने फ्यूचर में आके अप्लाई करनी है।
यू हैव टू इंप्लीमेंट ऑल दीज थिंग्स, और ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम तुम लर्न कर रहे हो ये चीजें। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, सीए फाइनल में जाके थोड़ा सा पार्शियलिटी हो जाता है, थिंकिंग दैट यू ऑलरेडी हैव अ नॉलेज। तो थोड़ा सा फैकल्टी थोड़ा सा फास्ट चलता है, नॉट फुल्ली, दे विल टीच यू एवरीथिंग इन सीए फाइनल अगेन, बट ऑब्वियसली ही विल एक्सपेक्ट समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो द मीनिंग ऑफ सम थिंग्स। तो अगर मान लो फाइनल में ये पूछेगा और मैंने तुम्हें इंटरमीडिएट में ही बता दिया डिस्क्लेमर नहीं है, तो तुम यू विल बी एबल टू इंप्रेस द फाइनल फैकल्टी और नॉट? कि सर यहाँ पे डिस्क्लेमर इसलिए क्यों नहीं है, अब बताओ रीजन। क्योंकि अपन जीसी के बारे में बोल ही नहीं सकते विदाउट वर्ड, और एविडेंस के बगैर ये पूरा स्टैंडर्ड ही जीरो है, क्योंकि ये 570 को बिलोंग करता है विद सीरीज 500 सीरीज। तो इसका मतलब डिस्क्लेमर कैन बी द ऑप्शन और कांट बी। तो अपने पास तीन ऑप्शन है, कौन सी? क्लीन, क्वालिफाइड, एडवांस। अब ये स्टोरी सुनना ध्यान से, ये लास्ट फ्यू वर्ड्स है जो तुम्हें ये तीनों ओपिनियन के बारे में बताएगा। ये बंदा कौन है? ऑडिटर। इन्हों क्या कर रहा था? ऑडिट। व्हाइल डूइंग द ऑडिट इसने क्या किया? इसने सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन किया। आफ्टर ऑब्टेनिंग ही डिड व्हाट? इवैल्यूएशन। उसने एविडेंस को पूरा इवैल्यूएट किया। आफ्टर इवैल्यूएटिंग ही थिंक्स दैट गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज व्हाट? पॉजिटिव थॉट और नेगेटिव थॉट। लेकिन ये क्लीन के अंदर आ रहा है, इट इज कमिंग अंडर वर्ड। ये देखो, ये किसके अंदर आ रहा है? क्लीन। ऐसा कैसे हो गया सर? आपने तो बताया था कि क्लीन के अंदर हमेशा क्या आते हैं? पॉजिटिव थिंग्स। सर सुनना ध्यान से, अभी पूरा स्टोरी सुनो। मेरे को क्या लगा कि गोइंग कंसर्न इज व्हाट? इनफ। तो मैं ऑडिटर हूं, आई वॉज डूइंग द ऑडिट, आई कलेक्टेड द एविडेंस, आई इवेल्युएटेड इट एंड माई कंक्लूजन सेज दैट कि गोइंग कंसर्न assumption is what? Inappropriate. I immediately rushed to whom? Management and TCW. मैंने मैनेजमेंट एंड TCW जी को बोला, सर ये फाइनेंशियल इंडिकेटर्स आई फाउंड वेयर आई थिंक दैट कि योर गोइंग कंसर्न assumption is in danger. What to do? You know what they said? Point number 1. Management agreed with whom? ये पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव साइन है? पॉजिटिव। मैनेजमेंट बोली, रोहित वी नो what you are saying, we are 100% agree with you, and not only that, we have already started taking the initiatives to rectify the same. मतलब management is acting reactively or proactively. That is also a poor indication of positive indication. तो उन्होंने, what I was doing, I was able to see the visible efforts done by whom? Management to take care of their which assumption? अब तुम मुझे बताओ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट अग्रीड विद मी, सेकेंड थिंग दे आर बिहेविंग रिएक्टिवली और प्रोएक्टिवली, इज देयर एनी पॉइंट ऑफ गिविंग द नेगेटिव ओपिनियन? क्योंकि ये फ्यूचर को इंपैक्ट कर रहा है, प्रेजेंट तो नहीं इंपैक्ट कर रहा ना, तो शुड आई गिव अ नेगेटिव ओपिनियन और शुड नॉट? इसलिए मैं कौन सी ओपिनियन दूंगा? क्लीन ओपिनियन दूंगा। पूरी स्टोरी समझे अभी? अब थोड़ा लगा कि वाई इट इज गोइंग इन अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट डायरेक्शन, बट अल्टीमेटली वी वेंट टू व्हाट? क्लीन ओनली। तो टेल मी स्टोरी क्या थी? Auditor was doing the audit, collected the SAE. What he concluded? Going concern is inappropriate. याद रखना, मैंने word use unresolved use नहीं किया, मैंने word use किया inappropriate. वो किसके पास गया? मैनेजमेंट इसे दोनों क्या करे? अग्री करे मेरे साथ। Yes, Rohit, we understand your fact and we already know that and we have already started taking the initiatives to rectify the same and they are visible to me also. And tell me one thing, should I give negative? सर मेरे को ये बताओ, इसके लिए प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल कौन है? एंड व्हेन दे आर बिहेविंग रेस्पॉन्सिबली, व्हाई शुड आई गिव द नेगेटिव रिपोर्ट? लॉजिक ही नहीं है। अदरवाइज तो ये तो वही बात होगी कि दुश्मनी निकाल रहे हो तुम। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो आई विल नॉट गिव। व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? क्वालिफाइड। अब सुनना, क्वालिफाइड, क्वालिफाइड में भी सेम स्टोरी है, इसलिए मैंने यहां पे सेम लिखा हुआ है, ठीक है? सेम स्टोरी है। मैं क्या कर रहा था? ऑडिट। मेरे को क्या मिला? ऑडिट एविडेंस। मैंने उसको क्या किया? इवैल्यूएट। इवैल्यूएट करके मेरा सेम थॉट प्रोसेस, गोइंग कंसर्न assumption इज व्हाट? मैं किसके पास गया? मैनेजमेंट ने क्या किया? अग्रीड। बट सेकंड वाला पॉइंट तो ना वो मिसिंग है यहां पे। बट एफर्ट्स टू रेक्टिफाई द सेम वर विजिबल और नॉट विजिबल। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? नेगेटिव है, तुमने अग्री किया, पॉजिटिव है, बट यू आर नॉट टेकिंग द वर्ड इनिशिएटिव. आई एम टेलिंग यू, नाउ यू आर रियलाइजिंग गोइंग कंसर्न assumption इज व्हाट? इनअप्रोप्रिएट. अब ऑब्वियसली आई कांट गिव कंप्लीट नेगेटिव एंड आई कांट गिव कंप्लीट, इन बिटवीन क्या आएगी? क्वालिफाइड. समझ में आ रहा है? लेकिन यहां पे मैंने फिर से वर्ड क्या यूज किया?
गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज व्हाट, ये वर्डिंग मैटर करती है यहां पे। अब थर्ड केस, व्हाट इज द थर्ड केस? एडवर्स। ऑब्वियसली विच रिपोर्ट? सेम थिंग, आई वाज डूइंग द ऑडिट, कलेक्टेड द एविडेंस। तीनों में कॉमन चीज समझ में आई? आई कलेक्टेड व्हाट? ऑडिट एविडेंस। तो इसलिए डिस्क्लेमर इज एन ऑप्शन और नॉट एन ऑप्शन। I evaluated my evidences, but what I thought now, ये क्या लिखा हुआ है? Going concern assumption is inappropriate or unresolved. Unresolved is a very damaging word. It's a very negative word. Unresolved का मतलब क्या होता है? Even if the company will try to take the initiative today, it is not possible to go back to the same position. मतलब damage is already done, and it's so huge कि कंपनी कैन कम बैक और कैन नॉट कम बैक। अब तो ग्रेवयार्ड में ही जाएगी कंपनी, कॉफिन में बैठेगी अभी तो कंपनी, डेथ होने वाली है कंपनी की। तो मैंने बोला, मैंने कहा सर आपकी गोइंग कंसर्न अजम्पशन अभी इनएप्रोप्रिएट नहीं है, अनरिजॉल्व। अब डज इट मैटर वेदर दे अग्री विद यू और डू नॉट अग्री विद यू? डज दैट मैटर और डज नॉट मैटर? तुम्हें कौन सी ओपिनियन देनी है? समझ में आ रहा है? तो मेरे को बता, नेक्स्ट अदर पार्ट ऑफ द स्टोरी इज रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड? नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि वेयर इट एंडेड, तो वेदर द मैनेजमेंट अग्रीज, अगर वो अग्री भी करेगी, मैं ये थोड़ा हाँ रोहित वी ऑल्सो नो दैट कि अवर गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज व्हाट? अनरिजॉल्व। तो शुड आई गिव पॉजिटिव रिपोर्ट, क्वालिफाइड रिपोर्ट और नेगेटिव? मैंने कहता है अग्री बोलते हो अच्छा है, यू नो दैट यू आर गोइंग टू डाई, गुड, आर यू गेटिंग ना? बट डेथ इज व्हाट? सर्टेन। तो थिंग्स कैन टर्न अराउंड और कैन नॉट टर्न अराउंड। अब यहां पे भी तुम्हारा एसएम यूज हो गया, टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट, लिक्विडेशन, रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी, वही चीज होगा। अब टर्न अराउंड पॉसिबल नहीं है, लिक्विडेशन कोई तुम्हारी कंपनी खरीदने को नहीं है, और तुम्हें क्या फाइनली क्या करनी पड़ेगी? लिक्विडेशन। ना तो डाइवेस्टमेंट पॉसिबल है ना टर्न अराउंड पॉसिबल, तो लास्ट ऑप्शन क्या होता है? लिक्विडेशन। कंपनी लिक्विडेशन मतलब क्या? बर्थ और डेथ। तो चाहे तुम अग्री करो या डिसअग्री करो, मेरे को तुम्हें कौन सी ओपिनियन देनी है? नेगेटिव। और डिस्क्लेमर क्यों नहीं आएगी लास्ट टाइम बताओ? क्योंकि तीनों में कॉमन चीज क्या थी? ये थी ऑब्टेनिंग व्हाट? SAA, right? So with that our 90% of this standard is over. Only one topic is left that will be able to complete tomorrow. So tomorrow first 10 minutes में topic हो जाएगा, and after that we'll see if we can start with the 700 series. We would love to start, and maybe one small standard I'll take which can be completed in the tomorrow's class itself, right? Thank you so much. I'll see you guys tomorrow. Bye everyone, take care.